Now question number 12. Question number 12. Given that function is something like x to the power n minus 1 if x is less than equal to 1, where it is x square if x is greater than, means if the value of x is 1 or less than 1, then the definition is x to the power 10 minus 1. And if the value of x is greater than 1, then the value of function is x square. Now the question is, you have to check the points of discontinuity. So at what point we have to check here? At what point we should have to check here? X is equal to 1. Right? So at x is equal to 1, first of all we have to talk about the left hand limit. Okay, in the left hand limit x tends to 1 negative of x. As it is saying that value of x is less than 1. It means what? It means limit x tends to 1. So 1 negative means less than 1. Less than 1 it is x to the power 10 minus 1. This is the value of the function. Now applying limit, it becomes 1 to the power 10 minus, and 1 to the power 10 is 1 and 1 minus 1 is 0. This is about the left hand limit. If we have to talk about the right hand limit, RHL, it is limit x tends to 1 positive fx. So it is limit x tends to 1. Positive means greater than value is x square. Okay, so it is on applying limit it becomes 1 ka square. Answer is 1. So here LHS is not equal to RHS. And what about the value of the function? If we have to talk about f1, so f1 is again what? 1 to the power 10 minus 1 is again 0. Clear? So what is here now? Limit x tends to 1 negative fx is equal to f of 1 but not equal to limit x tends to 1 positive fx. Here it means that the function is discontinuous at x is equal to 1. Clear? So function is discontinuous at x is equal to. Any problem in this? Right. 13. If this question is given, is the function defined by fx equal to now a continuous function? Means now we have to check whether the function is continuous or not. Means they are saying is the function is continuous function. So what is the function? Here fx is equal to x plus 5 if the value of x is less than equal to, clear? Otherwise it is x minus or x is greater than
x plus 5 if x is less than equal to 1, x minus 5 if x is greater than 1. Now we have to check the thing whether it is continuous or not. So here they are saying it is continuous function. So in the last we will say yes it is a continuous function or no it is not a continuous function. है ना? Here they will ask कि it is a discontinuous function or not. So I am saying I am writing here so function is discontinuous function. जो पूछे वही बता दो. ठीक है, कोई ज़्यादा रेस्ट नहीं. ठीक, आगे बढ़ते हैं. तो कहाँ पर चेक करना है मुझे पॉइंट? at x is equal to 1. ठीक है, पहले करता हूँ मैं x is equal to पहले निकालने में लेफ्ट हैंड क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव मींस वैल्यू 1 से कम है एज द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 1 फंक्शन इज x प्लस 5. ठीक है, नाउ ऑन अप्लाई लिमिट इट बिकम्स 1 प्लस 5 इज. ठीक है, इसके बाद राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव है ना. तो अगर वैल्यू 1 से ज्यादा तो क्या होगा तो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव मींस द वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन इज x माइनस 5 यानी x माइनस. ठीक है, and again on applying limit it becomes 1 minus 5 that is minus का. तो दिख रहा है यहाँ पर कि left hand limit is not equal to right hand limit. So now what about f of 1? It is equal to 1 plus 5 that is f of 1 is 6. Thus left hand limit the limit x tends to 1 negative fx is equal to f of 1 but they are not equal to limit x tends to 1 positive. So function is not continuous at x is equal to. So the function is not continuous at x is equal to. Is the concept clear or not? Any doubt? Right. Now next question, question number 14. Written? Can you start? Now next question is discuss the continuity of the function f where f is defined. Now again they are saying about the continuity. So in the last we will give the answer in the form of the continuity. है ना, कि function continuous है या continuous नहीं है. Question number 14, it is defined at question number 14 given that fx is equal to 3, function is 3 when if x is between 0 to है ना, if x is in this range now then answer is 3 and if otherwise it is 4 in the case of if x is greater than 1 but less than 3 or the function is 5 if 3 2. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में एक दो तीन चीजें समझ लीजिए. मैं अगर आपसे कहूं इस फंक्शन की डोमेन क्या है तो क्या है इसका डोमेन? इस फंक्शन का डोमेन है 0 से लेकर के 10.
डोमेन क्या है, 0 से लेकर के 10 तक वहीं तक डिफाइन है, ठीक है। अगर वैल्यू 0 से कम हो गई तो पता नहीं क्या आएगा, और अगर वैल्यू 10 से ज्यादा हो गई तो पता नहीं क्या आएगा। लेकिन 0 से 10 तक भी उसने कई इंटरवल में से बांट रखा है, जैसे कि अगर वैल्यू x की 0 और 1 के बीच में है, 0 हो चाहे 1 हो और इनके बीच में हो, तो आंसर आएगा 3, सीधी सी बात, ठीक। अगर फंक्शन की वैल्यू सॉरी अगर x की वैल्यू 1 और 3 के बीच में हो, लेकिन 1 नहीं होनी चाहिए, 1 आएगा तो 1 हो जाएगा, और अगर 3 भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 1 और 3 के बीच में अगर होती है तो आंसर आएगा 4। और अगर वैल्यू 3 या 10 तक के बीच में, 3 हो चाहे 10 हो, इस रेंज में बीच में हो, तो इसका आंसर आएगा। फंक्शन समझ आ रहा है, कोई दिक्कत ना। So this is about the function. Now they are saying find the discuss the continuity of the function. Now we have to discuss about the continuity of the function. Now first of all, tell me on what points we have to check the continuity of this function. तो फिर 0 कितना निकालेगा? किस किस पे चेक करनी चाहिए? 3 में बस लेस देन ग्रेटर देन, ठीक है। और किसी को जवाब 1 तो फिर सर 0 और 10 में कुछ तो होना चाहिए ना, तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं कि वो क्या है। मेरा दिस पर फंक्शन किस तरीके से डिफाइन है, अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, यहाँ 0 और यहाँ पर ये 1, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा हमेशा 1 फंक्शन के 0 से लेकर के 1 तक के बीच में ये है, ठीक है। अगर वैल्यू 1 और 3 के बीच में है 1 2 3, यहाँ इस बीच में है तो आंसर आएगा 4, ये वाला आता है यहाँ से लेकर के यहाँ, ठीक है, इस तरीके से। और अगर वैल्यू 3 और 10 के बीच में तो आंसर आता है 5, आंसर क्या आएगा 5। अगर वैल्यू 3 से लेकर तो यहाँ नहीं 10, ठीक है, तो ये बीच में है तो आंसर आएगा इस तरीके से फंक्शन डिफाइन, समझ में आ रही। तो यहाँ से यहाँ तक कंटीन्यूअस नहीं है, तो कहाँ पहला इसका प्रीवियस कहाँ होगा, हाँ आएगा हाँ पहली बार तो आया आंसर पढ़ने तो जब ये सुन ले बैक लेके नहीं आना है, विदाउट बैक तुम्हारे विदाउट बैक लेके चले जाओ, इधर से नीचे से निकलना, ठीक है। सोने भाई बड़ी दिक्कत है यार, जैसे तैसे बिल्कुल आया कैसे स्टार्ट ना क्या था ना। तो भी देखो यहाँ से आपको कंटीन्यूअस है, उसके बाद पहला ब्रेकेज आएगा 1, तो हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी है ये सब करके मैंने डायग्राम बना दिया तो आपको दिखाई दे रहा होगा कंटीन्यूअस नहीं है ना। फिर 3 पर हमने चेक कर फिर यहाँ से यहाँ तक ठीक है सब कुछ, फिर हम फिर कहाँ ब्रेक आया 3 का ब्रेक आया, तो मैं डायग्राम बनाऊंगा तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कंटीन्यूअस है और फिर आगे, ठीक। अब यहाँ पे मैं आपको अगर आपको बात कहनी है कि सर 1 और 10 का क्या रोल है, 1 और 10 क्या 0 और 10 का कोई रोल नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको बार बताता हूँ ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन के बराबर है लेकिन वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। तो अगर आपको अपनी थोड़ी सी कलाकारी दिखानी है कि नहीं सर मुझे तो 0 और 10 में कुछ ना कुछ करना है, अगर मन है तो आप एक काम करो 0 पर आप 0 पर है ना 0 पर आप राइट हैंड लिमिट निकालो, 0 पर राइट हैंड लिमिट निकाल लो और वैल्यू की फंक्शन निकाल लो, अगर वो दोनों बराबर हो गए तो यहाँ पर भी कंटीन्यूअस हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ दोबारा से 10 पर वैल्यू की फंक्शन निकाल लो और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो 10, वो दोनों बराबर हो गए तब दिमाग में इतना तो कर सकते हो, लेकिन 10 पर आप राइट हैंड लिमिट नहीं निकाल सकते क्योंकि डिफाइन नहीं है, ठीक है। 0 पर आप लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकाल सकते क्योंकि डिफाइन नहीं है। अगर आपको 0 10 पे कुछ करना है तो आप ये कर सकते हो, कई टीचर्स करवाते हैं इस चीज, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैं सिर्फ आपको एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड के पेपर की तैयारी करा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये दोनों काम नहीं करवाऊंगा। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको अलग-अलग वीडियोस में अलग-अलग चीजें मिलेंगी वहां पर, यहाँ वो सिर्फ वैल्यू फंक्शन और राइट हैंड लिमिट निकालवाएंगे, यहाँ पर वो लेफ्ट वैल्यू फंक्शन और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालवाएंगे, लेकिन वो रहेगा कंटीन्यूअस, ठीक है। क्यों ऐसे तो मैं कैसे समझ कंडीशन आप क्या पता हो तो दिखाई दे रहा है ना 0 पर भी और 1 पर भी
वैल्यू 3 है, तो 0 पर भी मैंने सर्किल बाउल बनाकर जैसे ब्लैक को कर दिया ना, तो 0 पर भी और 1 पर भी वैल्यू 3 है, तो कंटिन्यूस जा सकता है। तो आप लोग वैसे हो सकता है, एक्चुअली मैंने ये एक्सप्रेशन इसलिए दिया कि अगर आपने कहीं वीडियो देखा हो तो उसमें ऐसा ही होगा कि उन्होंने ब्रैकेट लिमिट निकाली होगी 0 पर, पहले उन्होंने 0 पर बात करी होगी, 0 पर उन्होंने क्या करा होगा, ब्रैकेट लिमिट और वैल्यू फंक्शन निकाली होगी, उसके बाद 1 पर पहुंचोगे, 1 पर सब काम वही करेंगे, हम करने वाले हैं, फिर वो 3 पर पहुंचोगे, 3 पर वही काम करेंगे, हम करने वाले हैं, और 10 पर उन्होंने क्या करा होगा, लेफ्ट हैंड निकाली होगी और वैल्यू फंक्शन। तो मैं आपसे कह रहा हूं इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप तो बस जहां-जहां ब्रेक हो रहा है ग्राफ वहां बात करो, आप 1 पर बात करो और 3 पर बात करो, बस उससे आगे की चीज बात नहीं करनी। यही बात आपको समझ में आती है? यस और नो? एनी डाउट इन इट? मेरा पढ़ दो, डायग्राम से आया इसका? तो कहां चेक कर पहले? 1 पर एट x इक्वल टू पहले करना होगा लेफ्ट हैंड, ठीक है? लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव ऑफ fx, वैल्यू 1 से कम, क्योंकि वैल्यू 1 से कम है तो इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1, तो फंक्शन क्या आएगा? अब लिमिट लगाओ, लिमिट लगाएगा तो x आएगी, सो इट डजंट मैटर, आंसर इज 3। क्लियर? नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट right hand limit. So what is right hand limit? It is limit x tends to 1 positive fx, वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो अगर ज्यादा है तो क्या आएगा? तो जाएगा लिमिट x tends to 1, here it is on left hand limit, answer is, ठीक है, ये हो गया 3, हो गया 4, and if you talk about the value of the function f1 कितना हो जाएगा? 1 पर कितना आंसर? डायग्राम रख करके वहां पे आपको दिख रहा होगा डिसकंटिन्यूटी था वहां पर, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा not equal to limit x tends to 1 positive, ठीक है? ये बात समझ में आती? और क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, इसका क्या मतलब होगा? सो फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस at x equal to 1 पर तो नहीं कंटीन्यूअस नहीं, ठीक है? नाउ वी हैव टू चेक at x equal to at now at x equal to, अब हम x equal to 3 पर चेक करेंगे, ठीक है? तो 3 पर क्या होगा? 3 पर आ जाएगा फिर से लेफ्ट हैंड x tends to 3 नेगेटिव, three negative means value of x is less than 3, and if the value of x is less than 3, in this case answer is, so here it is. Now we have to talk about right hand limit. Limit x tends to 3 positive fx, तो जाएगा limit x tends to 3 fx, fx क्या हो जाएगा? Now value of x is greater than 3, and if it is greater than 3, answer is 5. So here it is. And if you talk about the value of the function, so it is f of 3, na? It is what? F of 3 is again, ठीक है? So here it is. Thus limit x tends to 3 negative fx is not equal to f of 3 is equal to limit x tends to 3 positive. अगर मैं आपको यहाँ पर किसी फंक्शन की तैयारी करा रहा होता है ना, तो मैं आपको बताता here the function is right continuous, it is left continuous, यहाँ पर लेफ्ट साइड से continuous, राइट साइड से continuous, और यहाँ पर here the function is right continuous। लेकिन क्योंकि हमें इतना डीपली नहीं जाना है कि लेफ्ट continuous के राइट continuous बस,
we just simply have to tell whether it is continuous or discontinuous. बस इससे आगे पीछे कहानी कुछ नहीं, डायग्राम नहीं, डायग्राम बनाना है, डायग्राम नहीं, बस जितना बताया गया उतना करके आगे बढ़ो, ठीक है? ये बात समझ में आती है ना? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर से यहाँ पे एक नॉट इक्वल है, क्योंकि नॉट इक्वल इसका मतलब इसका क्या मतलब हुआ? फंक्शन इज क्वेश्चन नंबर now connect with that, just connect the question and tell me on what points we have to check the activity. बराबर होगी क्यों होगी क्योंकि सर 1 से लेस देन और 1 से ग्रेटर देन दोनों पे देखा है। अच्छा क्लियर तो ऐसा में कर लेते जो क्वेश्चन 3 and question 15 is given that function is 2x if x is less than 0, ठीक है? It is 0 if x is between 0 and 1, otherwise it is 4x if x is greater than। तो क्वेश्चन ये था, अगर आपने हाथ में मेरा सुन लिया ना, क्वेश्चन ये था कि आप सर यहाँ पर किस पर चेक करना है, आपको तो आपने 0 और 10 पर चेक नहीं कर दिया था, तो यहाँ किस पर चेक करना होगा? तो यहाँ पर चेक करना है 0 पर और 1 पर। और क्यों चेक करना है 0 पर 1 पर? क्योंकि करेक्ट आंसर ठीक आ रहा है। 0 से पहले और 1 से भी पहले जहाँ डिफाइन होगा वहाँ हम उसका आंसर फाइंड करेंगे। जैसे मैं बताया एक बार फिर से मैं इसे ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से। फंक्शन है 0 1 ओरिजिन होता ही है नहीं, अगर वैल्यू 0 से कम है, 0 से कम मतलब इधर नेगेटिव की वैल्यू, तो आंसर आएगा 2x। वो हमेशा 2x ही रहेगा, चाहे आप कुछ भी लिखते हो x, वो हमेशा उसका तुलना होता रहेगा x। ठीक है, यानी स्ट्रेट लाइन लिखने कुछ और जो बनेगा, तो मैं आपको सबने बता रहा हूँ कि ऐसा होगा। ठीक, फिर आगे पर्टिकुलर तो कैसे होगा? यहाँ से सीधी लाइन बना लो, 2x है ना, y is equal to 2x, तो y is equal to 2x का क्या होता है? अगर x 1 है, अगर x यहाँ पर होगा -1 तो y कितना हो जाएगा? -2 है ना, यानी उसका दुगना होता है। बस समझ आ रही है? ठीक है, कहीं कैसे होगा, कैसे क्या होगा? अगर -1x y कितना हो जाएगा? -2, -1 -2 यहाँ हो जाएगा, ये है। और अगर ये -2 है तो कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। चल रही है एकदम से लाइन कुछ स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसी है। ये कब है लाइन? ये लाइन कब है? जब x की वैल्यू 0 से कम पहली बार। अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के अगर बीच में है, ये 1 ठीक है,
अगर यहाँ पर है तो आंसर आएगा हमेशा 0। तो आंसर क्या है हमेशा 0। और इस केस में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है बस यही तक, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर ये इसका आंसर 0 भी और 1 भी, इस 0 वाली को इसका आंसर, ठीक। उसके बाद अगर वैल्यू 1 से ज्यादा है तो आंसर आएगा 4x। अगर वैल्यू 1 से ज्यादा है, जैसे 1 आएगा से 2 होगी तो आंसर आ जाएगा सीधा 8। 2 4 जा 8। इसमें भी एकदम से रैंडमली इंक्रीमेंट होगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो कुछ लगभग ऐसा ग्राफ दो, ठीक। अब हमसे आगे से कंटिन्यूटी चेक करना, हमें किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी चाहिए? तो क्या 0 पे चेक करनी चाहिए? हां 0 पर, क्योंकि 0 से, इसका मतलब है समझ लीजिए, क्योंकि 0 से लेस देन भी डिफाइन है और 0 से ग्रेटर देन भी डिफाइन। इसका आंसर ये है ना जो आपने बताया था। ऐसे ही क्या मुझे 1 पे चेक करनी चाहिए? हां 1 पे चेक करनी चाहिए, क्योंकि इसकी लेस देन भी डिफाइन है और ग्रेटर देन भी डिफाइन, ठीक है। तो यहां पर मैं 0 पर भी चेक करूंगा और 1 पर भी। इज द थिंग क्लियर और नॉट? हां जी, यस और नो? यस सर। थैंक यू। शुरू करें? एट x is equal to 0, चले करते हैं लेफ्ट हैंड। तो क्या आएगा? लिमिट x tends to 0 negative of x. Now value of x is greater than, is less than 0. So as it is less than 0, so what I have to use here? On applying limit, it is कोई दिक्कत नहीं, 0 आता है। फिर राइट हैंड लिमिट x tends to 0 पॉजिटिव fx, वैल्यू 0 से ज्यादा है, और अगर ज्यादा है तो आंसर क्या देंगे हम? यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x tends to 0, आगे 0 प्लस fx का मतलब जाएगा 0, तो क्या जाएगा ये? ये भी 0, तो ये भी 0। नाउ वी विल चेक द वैल्यू। f0 क्या हो जाएगा? f0 क्या हो जाएगा? 0 पर इससे आंसर क्या रहेगा? 0, ठीक है। इसलिए मैं ग्राफ में कहीं पर भी आपको ब्रेकेज नहीं दिखा पाया। आपने चीज देखी नहीं देखी? पिछले वाले ग्राफ में दिखा था ना, ब्रेक हो रहा था तो वहां पर डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा था। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ जब इसका ग्राफ बनाऊंगा तो आप बिना अपना चौक उठाए पूरा ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 0 पर भी कंटिन्यूअस होने वाला है और 1 पर भी कंटिन्यूअस होने वाला है। ऐसा कुछ सही बना रहा है पक्का? इसलिए क्या हुआ, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू का फंक्शन इक्वल आ गया। सर का तुम्हारा एक्सपर्ट है? आप पता नहीं क्या प्लानिंग कर रही है फ्यूचर की, मैं ऐसे करूँगी वैसे करूँगी, और मेरा प्रेजेंट चौपट हो रहा है। किसी को करूँ मैं? करूँ? पक्का? Now left hand limit and right hand limit value of the function is equal. So what we have to write? Thus limit x tends to 0 negative fx is equal to limit x tends to 0 positive fx is equal to f of e, and all the values are equal to, तो उसमें क्वेश्चन ने कहा क्या है? हमसे क्वेश्चन ने कहा है फाइंड डिस्कस दी कंटिन्यूटी, है ना। सो x0 इट इज अ कंटिन्यूअस, है ना। मेरा मतलब इस ग्राफ so fx is continuous and x is equal to, तो ये 0 पर तो कंटिन्यूअस है। अब मैं बात करनी है किस पर? at x is equal to 1, ठीक है। चलो चेक करते हैं अगेन। at x is equal to, कंपेयर करते हैं लेफ्ट हैंड, क्या रहेंगे? लिमिट x tends to 1 negative of fx, तो जाएगा लिमिट x tends to 1 से वैल्यू कम, क्योंकि वैल्यू 1 से कम है, कौन से क्या वाला है? 0 1, ठीक है। आया ना? 1 से क्या जाएगा? तो कुछ कह रहा है क्या? क्या कर रहे हो? सही तो बता। x की
वैल्यू वन से x की वैल्यू 1 से कम है, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड में निकाल रहा हूँ 1 की, इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? सर यार क्वेश्चन लेट आई एक्सप्लेन माई सेल्फ, तब मैं जरा हो जाऊं, मैं समझ गया आपकी बात। पहले जरा दोनों रोको, जरा मुझे सुन, मैं कहता हूं ना हाथ रोको, जरा मुझे सुनो, ठीक है? मैं कहीं कर रहा हूं तो फिर मुझे मैं शुरू करूं फिर से, मैं दोबारा 0 पर चेक कर लिया, 0 पर फंक्शन हमारा कंटीन्यूअस है। अब कहां पर चेक करना है? 1 पर चेक करें। अगेन एट x इक्वल टू 1, तो पहले क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड निकालेंगे, लेफ्ट हैंड क्या हो जाएगा? लिमिट, क्योंकि 1 पर चेक कर रहा हूं तो x टेंड्स टू 1 के लिए वैल्यू 1 से कम, क्योंकि वैल्यू 1 से कम है तो फंक्शन क्या आएगा? फंक्शन क्या आएगा? है ना? और अब क्या होगा? अब आप लिमिट लगाते रहो, होता होगा इसको कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बात करते हैं राइट हैंड लिमिट, क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव कितना हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 और पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब वैल्यू 1 से ज्यादा है। अगर वैल्यू 1 से ज्यादा है तो आंसर क्या जाएगा? नाउ वन अप्लाई लिमिट, आंसर हो जाएगा ये। और अगर बात करूं वैल्यू की फंक्शन कितना हो जाएगा? f ऑफ 1 पर आंसर क्या आ रहा है? सर यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं, ठीक है? और वैल्यू की फंक्शन तो लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर है, इसका मतलब ये ग्राफ 0 पर कंटीन्यूअस सॉरी 1 पर कंटीन्यूअस, इसलिए मैं हम लोगों को बताया गया है, अगर हमारे टीचर्स ने हमें बताया, मैं आपको बता रहा हूँ, आप ग्राफ बनाकर इसका आंसर नहीं देंगे, ठीक है? क्योंकि ग्राफ इसका प्रॉपर्ली सॉफ्टवेयर के थ्रू ही बनता है, या फिर हम लोगों को काफी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तब इसका ग्राफ पर्टिकुलर ग्राफ बनता है, अदरवाइज हम सिर्फ एजम्पशन ही लगा सकते हैं कि लगभग ऐसा ग्राफ होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है? अगर ग्राफ बनाकर ही आंसर बता देते हम लोग तो इतनी पूरी रामायण क्यों लिख रहे हैं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है? तो फिर क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं 10 लिमिट x tends to 1 negative of fx is equal to f of 1 but not equal to limit x tends to 1 positive of so fx is क्या? हमें वेक्टर की बात करें तो कंटीन्यूअस वर्ड यूज करना, ठीक है? सो fx is not continuous at x equal to, ठीक है? तो सर फिर अभी आपने जो पीछे ग्राफ बताया था उसमें आपको क्या है नहीं, तो उसमें मैं ग्राफ बोला था क्यों ग्राफ मतलब बताया क्या सर कहा था इस तरीके से ग्राफ है ये x एक्सिस y एक्सिस, उसने कहा कि अगर वैल्यू x की वैल्यू 0 से अगर कम है तो आंसर 2x आएगा, ठीक है? इस तरीके से ग्राफ आता है। अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में 0 भी कंसीडर करी गई थी और 1 भी कंसीडर करी गई थी तो आंसर नहीं आएगा, और अगर वैल्यू 1 से ज्यादा है तो आंसर 4x आएगा, वो और तेज है, ठीक है? तो बात ही चल रही थी कि सर फिर ऐसा क्यों आया हमारे कैलकुलेशन में कि यहाँ पर तो कंटीन्यूअस आया ना, लेकिन यहाँ पर डिसकंटीन्यूअस है, ठीक? ऐसा क्यों? इतना देखो ध्यान से, वो ये रहा था
कि अगर x की वैल्यू 0 से कम है तो आंसर रहेगा 2x। ठीक है, हर बार ढूंढना होता है। और यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 2x का मतलब अगर मैं इसे इस 0 को, वैसे तो मुझे 0 को यहाँ पर चेक करना चाहिए, 0 का आंसर 0 ही होना चाहिए, लेकिन अगर मैं इस 0 को इस 2x से चेक करने की कोशिश करूँ तो एट 0 क्या लेफ्ट हैंड लिमिट को कंटिन्यू कर रहा है? हाँ, लेफ्ट हैंड लिमिट को कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि 2 0 का बस हमारी यहाँ पर जो फिलिंग है पूरी हो गई, यहाँ पर कोई गैप नहीं है। ठीक, लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये लिखा हुआ है, ये लिखा है 0 और ये लिखा हुआ है 4x। अगर मैं यहाँ पर पॉइंट होगा 2 तो 4 2 जा 8, बोला होगा ये बहुत ऊपर एक जा रहा होगा, लेकिन इसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ से 0 है, तो इसमें और इसमें थोड़ा अंतर रह जाएगा, वो सीधा 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी 1.01 इसका 4 टाइम्स, तो 0 से तो ज़्यादा ही हो गया ना देखो। और थोड़ा समझ लो कि 0 पर क्या हो रहा था, 0 पर तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू फंक्शन से बराबर आ रही थी, और राइट हैंड लिमिट में क्या हो रहा था, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू फंक्शन और ये अलग हो गया था। यानी कि यहाँ से अगर देखा जाए तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू फंक्शन और 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट तक आंसर 0 ही रहा। 0 0 0 और 0 और 1 तक वैल्यू फंक्शन 1 तक में आंसर 0 ही रहा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं जो आंसर आ रहा है वो 0 ही आ रहा है। जैसे ही मैं से आगे बढ़ा 1 से आगे बढ़ूंगा, ठीक है, तभी आंसर चेंज होगा। तो क्या गया, जो गैप बना वो यहाँ, ठीक है, इसलिए वहां पर डिस्कंटिन्यू रहा, बाकी ना चलिए कंटिन्यूअस। पक्का क्या ये बात की समझने की थी, समझने वाले नंबर इसमें मिलेंगे, जो मैंने पूरी कैलकुलेशन करी नंबर इसके लिए ना, तो नंबर इसमें मिलेंगे जितना हमने लिखा हो। वो तो मैं आपको खाली समझा रहा हूँ कि मैं बहुत काबू मास्टर हूँ। ठीक है, सो मेरा प्रोफेसर कैन आई नाउ, ऐसा नहीं बेटा, मैं आपको रटवा नहीं रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ क्या होगा। ऐसा ना हो यहाँ पढ़ा ध्यान में कैलकुलेट यहाँ आती है, क्वेश्चन कर रही है तो क्या होता है ये नंबर, कितनी टेंशन ना बात नहीं वैसा क्या होती है। और एनसीईआरटी के बाहर में क्वेश्चन मत देते बोलो कर पाएंगे। अब अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो दुनिया कहीं से क्वेश्चन आते तो दिक्कत आएगी क्या, आप इजीली उन क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 16। function it is -2 if x is less than equal to minus, it is 2x if x lies between -1 plus 1, and it is 2 if x is greater than, ठीक है, कुछ इस तरीके से मुझे फंक्शन दिखा है, बताना है कंटिन्यू। तो कहाँ चेक करना चाहिए इसे, -1 पर और प्लस, दोनों ही जगह से चेक। ये बात आप समझ पा रहे हैं कि इसमें कोई डाउट तो नहीं आ रहा। पहले स्टार्ट करते हैं हम x इक्वल टू माइनस, ठीक है, यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव ऑफ fx, लिमिट x टेंड्स टू 1 से कम वैल्यू, 1 से अगर कम तो कौन सा जाएगा माइनस, तो दिक्कत नहीं। और ऑन अप्लाई लिमिट तो x का ही नहीं यहाँ लिमिट अप्लाई करो तब भी आंसर मिल जाएगा, तो आंसर माइनस 2 है। ठीक है, आगे बढ़ जाए, फिर आ जाएगा राइट हैंड, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव ऑफ x, 1 पॉजिटिव ऑफ fx, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव यानी वैल्यू 1 से ज्यादा है, और अगर ज्यादा है 1 से सॉरी ये सब भैया माइनस का चल रहा है, ठीक है, क्या चल रहा है माइनस, आप लोग समझ रहे होंगे, बस आपने डिस्टर्ब नहीं करना चाहा मुझे, माइनस ये चल रहा है, तो वैल्यू -1 से ज्यादा है। अगर वैल्यू -1 से ज्यादा है तो आंसर क्या आएगा, है ना। नाउ अगेन ऑन अप्लाई लिमिट
तो हो जाएगा 2 इंटू माइनस ऐसा क्या रहेगा माइनस का। तो ठीक है भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट लिमिट तो बराबर आ गई। अब क्या निकालना होगा तीसरा वैल्यू f ऑफ माइनस 1 अगर इक्वल टू है तो क्या हो जाएगा कोई दिक्कत है आगे बढ़ा जाए। तो लिखेंगे 10 लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ये सब क्या आ रहे हैं as they all are equal, so fx is continuous at x equal to minus। कोई दिक्कत है? तो मैंने -1 पर चेक करा, फंक्शन मेरा कंटिन्यूस है। नाउ वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी एट x equal to 1। तो अगेन एट x equal to 1 ये फंक्शन हो जाएगा। अगर वैल्यू 1 से कम है, 1 से अगर कम है तो आंसर आ जाएगा 2x। ठीक है? नाउ ऑन अप्लाइंग लिमिट क्या हो जाएगा 2 बन जा फिर राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी वैल्यू 1 से ज्यादा। अगर वैल्यू 1 से ज्यादा तो आंसर क्या जाएगा सीधा यहाँ पर भी क्या जाएगा ये। और अगर मैं बात करूं f1 की, f1 में क्या आएगा आंसर 2x। f1 में क्या आंसर आने वाला है 2x। x की मैं कैसे लिखूंगा और 2 बन जा बोलो भैया कोई दिक्कत। तो यहाँ पर क्या हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन और राइट हैंड लिमिट वो सब बराबर। ठीक है? सो fx इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू। इज दैट क्लियर और नॉट? ओके राइट। तो ये इसका लिखा ठीक है राइट हो। Question number 17. Find the relationship between a and b so that the function f defined by fx equal to इतना। Now this time the question is saying is continuous at x equal मतलब x equal to फंक्शन तो continuous है। अब आप a और b के बीच में रिलेशन बताइए क्या। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? इस बार आपको कंटिन्यूटी फाइंड नहीं करनी है। कंटिन्यूटी इज ऑलरेडी गिवन टू यू कि x equal to 3 पर फंक्शन कंटीन्यूअस है। अब बताओ a और b का रिलेशन क्या है। इस बार ये पूछा क्या मैं आपको क्वेश्चन समझा पा रहा हूं? तो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 फंक्शन गिवन है हमें fx equal to ax plus 1 जब x की वैल्यू 3 या 3 से कम हो अदरवाइज bx plus 3 अगर x की वैल्यू 3 से ज्यादा। ठीक है? एंड इट इज गिवन टू अस दैट द फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू है ना। सो एज फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 3। अगर फंक्शन x इक्वल टू 3 पर कंटीन्यूअस है तो क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव ऑफ fx होगा। अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है तो इसका लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट तो बराबर होगी। आया ना ठीक? और लेफ्ट लिमिट निकलती कैसे? अगर वैल्यू 3 से कम है तो 3 से कम है नहीं फंक्शन ये वाला है ना। फंक्शन क्या हो जाएगा फंक्शन हो जाएगा ax प्लस ये हो गया फंक्शन। ये दिक्कत? और ये किसके बराबर होना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव मतलब वैल्यू 3 से ज्यादा है तो आंसर जाएगा bx प्लस। क्या मैं आपको ये वाली लाइन समझा पा रहा हूं नहीं? यस सर। ये लाइन समझ आती है? नाउ ऑन अप्लाइंग लिमिट इट बिकम्स 3a plus 1 it becomes 3b plus आया ना। ये लाइन क्लियर है? ठीक? फिर क्या होगा ये b ऊपर नजर आएगा तो हो जाएगा 3a minus 3b और ये वाला है ना ये 1 को नजर आएगा तो हो जाएगा 3 minus 1 यानी कि सीधे तुम लिख दो
तो एक्चुअली ये रिलेशन आ गया आंसर। लेकिन पीछे आंसर क्या गिवन है, तो इस पूरी इक्वेशन की डिवाइड आप 3 से कर दो। अगर आप बोर्ड में ये भी आंसर लिख दो तो गलत नहीं है, ये भी ठीक है, लेकिन मैं पीछे वाला आंसर कर देता हूँ, तो उसके लिए थोड़ी मेहनत कर देता हूँ, ठीक है। तो पूरी इक्वेशन को मैं 3 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, आंसर आ जाएगा a - b = 2/3 आया ना। So this is the relation between A and B. Clear है? Yes sir. कोई डाउट इसमें? No sir. राइट डाउन। Now question number 18. Now just listen, और मैं आपको फिर एक बात और बता देता हूँ आपको कि बोर्ड एग्जाम में जब एक क्वेश्चन आएगा, है ना, तो क्वेश्चन को समझना अपने आप में कला है, एक आर्ट है ना। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन समझ ही नहीं पाते और कोशिश कर रहे होते हैं उसका आंसर देने की, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन आपको, जैसे हमने 10th क्लास में बताया था, समझ नहीं आता था क्यों लिया पहले, है ना, चीटिंग में निकाल देते हैं। यहाँ पर इसलिए पेपर में आपको पहले दिया था कि पहले आप क्वेश्चन समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे क्वेश्चन आपका 18th वाला क्वेश्चन, इसे समझना पड़ेगा, फिर इसे हम आगे बढ़ेंगे। शुरू करें? द क्वेश्चन इज, शुरू करें? Yes sir. कैन आई स्टार्ट? Yes sir. अरे यस और नो? Yes sir. अरे अंदर बोलोगे? No sir. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय fx = इतना, एक फंक्शन गिवन है, कंटीन्यूअस एट x = 0। मतलब फंक्शन x = 0 पर कंटीन्यूअस हो जाए, उसके लिए लैम्डा की क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो यही क्वेश्चन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय फंक्शन की डेफिनेशन गिवन है, कंटीन्यूअस एट x = 0, कि फंक्शन x = 0 पर कंटीन्यूअस हो जाए, उसके लिए लैम्डा की क्या वैल्यू होनी चाहिए। ये होगा पहली बार जब हम इसका आंसर देंगे। जब वो आंसर पूरा हो जाएगा फिर आगे लिखा हुआ है व्हाट अबाउट कंटीन्यूटी एट x = 1, और लैम्डा की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि x = 1 पर वो कंटीन्यूअस हो जाए, ठीक है। तो इन दो पॉइंट पर हमें लैम्डा की वैल्यू बता दी कि क्या क्या होगी। तो थोड़ा इसका आंसर थोड़ा ध्यान से सुनना, आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 गिवन दैट, और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक्सप्रेशन ध्यान से सुनना। फंक्शन क्या गिवन है, fx = लैम्डा x² - 2x। कब? जब x की वैल्यू 0 या 0 से कम हो, अदरवाइज इट इज 2x + 1 if x is greater than 0। इस कंटीन्यूअस एट x = 0 कि लैम्डा की किस वैल्यू पर फंक्शन x = 0 पर कंटीन्यूअस हो जाए, ठीक है। तो we have to check at x = 0, ठीक है। x = 0 पर कंटीन्यूअस की क्या क्या कंडीशंस है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट लिमिट के बराबर होना चाहिए, आया ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट लिमिट मतलब इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx = लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ये होना चाहिए, है ना। तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, और क्योंकि वैल्यू 0 से कम है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, लैम्डा x² - का लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, क्योंकि वैल्यू 0 से ज्यादा है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 4x प्लस। अब मैं बोल रहा हूँ ऑन अप्लाइंग लैम्डा, ये तो बन जाएगा भैया 0, क्या बन जाएगा, ऑन अप्लाइंग लिमिट। जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो 0² - 2 × 0 और 0 × समथिंग 0 इज इक्वल टू, जब यहाँ लिमिट अप्लाई करूंगा क्या हो जाएगा, 4 कितना 400 और 0 + 1, आंसर आ गया 0 0 2 1, मतलब लैम्डा बन गया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर देखो पहले आपको फॉल्स स्टेटमेंट, आपको वाला चैप्टर याद आ रहा है कौन सा, सेट मैथमेटिकल रीजनिंग, मैं बोलूं
क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तुम्हारी तीन कंडीशंस होती थी, या तो नहीं वो वाली बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ या तो यूनिक सॉल्यूशन आता था, या नो सॉल्यूशन आता था, या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आता था। तो यूनिक सॉल्यूशन में हम आंसर बता दिया करते थे, x के लिए y की वैल्यू, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा या एलिमिनेशन मेथड लगा, और हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था जो आजकल नहीं, ठीक है, तो हम बता दिया करते थे। लेकिन यूनिक सॉरी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस कब आते थे, जब वहां पर एक ट्रू सॉल्यूशन आ जाता था, है ना, तो हम कहते थे अरे 9 9 आ गया, इसका मतलब यहां पर x और y की वैल्यू नहीं निकाल रहा हूं, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस ऐसे आ रहा है। और अगर 7 8 आ गया तो अरे ये तो फॉल्स स्टेटमेंट आ गया, इसका मतलब यहां पर नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट है। ऐसा कुछ याद आ रहा है? वही चीज यहां पर है। पहली बात तो फॉल्स स्टेटमेंट आया, फॉल्स स्टेटमेंट का मतलब कि जीरो पर एक ग्राफ कंटीन्यूअस नहीं है। पहली बात तो ये समझो कि ये क्या है, जीरो पॉइंट वन क्या बोलोगे कि कंटीन्यूअस नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं था कि कंटीन्यूअस है डिस्कंटीन्यूअस, क्वेश्चन ये था लैम्डा की किस वैल्यू पर ग्राफ कंटीन्यूअस होगा। तो यहां पे लैम्डा तो गायब हो गया, इस जीरो ने लैम्डा तो खत्म ही कर दिया, तो इसका आंसर ये है। मेरा आंसर सुनो, इसका आंसर क्या है, और यहीं पर आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन में आपको बता दूंगा, ठीक है। इसका आंसर ये है कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा द फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस। आप लैम्डा की कुछ वैल्यू लगाते रहो, फंक्शन तो डिसकंटीन्यूअस ही रहेगा। यस और नो? लैम्डा चाहे 0 हो, 9 हो, 99 हो, 1 हो, कोई असर नहीं पड़ रहा, सी कंटीन्यूटी पर है, x वो तो डिसकंटीन्यूअस ही रहने वाला है, ठीक है। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? पक्का? Now again they are saying ठीक है, as 0 is not equal to 1, thus for any value of lambda function is discontinuous at x is equal to सर समझ में आया नहीं आई? यस सर। आया ना? सर। तुम देखो आप लेना पर और सुन थोड़ी सी शुरू करूं। तो 0 पर सर लैम्डा की कुछ वैल्यू रखते रहो, फंक्शन तो डिसकंटीन्यूअस है ना, लैम्डा का कोई असर नहीं पड़ता, ठीक। आगे उसने फिर क्या कहा, उसने फिर बोल रहा है व्हाट अबाउट कंटीन्यूटी एट x इक्वल टू 1। चलो उसको चेक कर लेते हैं। सो नाउ एट x इक्वल टू एक्सपेरिमेंट में क्या, उस पर भी क्या होना चाहिए, उस पर भी लिमिट यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए। आया ना? अच्छा यहाँ पर आप लोग एक बात, ऐसा अच्छे बच्चों आप क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते, मुझे बहुत अच्छा लगता है, डिस्टर्बेंस नहीं करते पढ़ाने के दौरान। लेकिन अब आप मुझे बताओ इसका आंसर कि सर मैं तीसरी बार कर रहा हूँ ये काम, पहली बार यहाँ करा था, दूसरी बार यहाँ करा, तीसरी बार यहाँ करा। मैं बोल रहा हूँ बार बार कि कंटिन्यूटी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए, और उसमें मैं चेक करता हूँ वहाँ पर रिलेशन आ गया था यूआरपी का, यहाँ पर भी आ गया और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ आएगा। लेकिन क्या मैंने स्टार्टिंग में आपको यही बताया था कंटिन्यूटी के लिए? क्या बताया था? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कंटिन्यूटी के लिए मैंने बताया था लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे, वो तीनों बराबर होनी चाहिए तब फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो सर यहाँ पर और यहाँ पर आप वैल्यू क्यों गायब कर रहे हो? क्योंकि यहाँ पर मैं कंटिन्यूटी चेक ही नहीं कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ी पूछे इस वाले में ए और बी वाले में भी कि जो है साहब रिलेशन मेरा कंटिन्यूअस है या सॉरी रिलेशन फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है या नहीं है, बस ए और बी का रिलेशन पूछा था, तो वो मेरा लेफ्ट हैंड हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से भी काम चल रहा था, तो मैंने वो कर, ठीक है, उसकी जरूरत ही नहीं। सिमिलरली यहाँ पर वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए भी मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से काम चल रहा था, वैल्यू फंक्शन की जरूरत नहीं थी, तो मैंने ऐसे ही काम चल रहा, और यहाँ पर भी मैं यही करूँगा। क्या है फिर से क्वेश्चन है व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। एक्चुअली आधा क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन क्या है? पूरा क्वेश्चन ये है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय इतना व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू, ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पर लैम्डा को ही मेन रखना है,
x इक्वल टू 1 तो डिफाइन है। अब लैम्डा की वैल्यू बताइए कि लैम्डा की किस वैल्यू पर 1 पर ये कंटिन्यूटी होगी या नहीं। मेन रोल कौन है यहाँ पर, मेन हीरो कौन है, लैम्डा। ठीक है, आपको लैम्डा की वैल्यू बतानी है कि x इक्वल टू 1 पर कंटीन्यूअस होने के लिए मैंने इसलिए आपको स्टार्टिंग में बताया, ये क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा कि x इक्वल टू 1 पर कंटीन्यूअस है या नहीं, क्योंकि आप चेक ही नहीं कर सकते x इक्वल टू 1 पर कंटीन्यूअस है या नहीं। आप चेक करके देखो, लेफ्ट हैंड जैसे आप वैल्यू 1 से कम रखोगे तो लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, लैम्डा क्रिएट प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? पक्का? यहाँ पे एक्चुअली आएगा नहीं। तो लिमिट x टेंड्स टू, मैं 1 पर चेक कर रहा हूँ, 1 नेगेटिव fx और 1 पॉजिटिव ऑफ fx। शुरू करूँ तो अगर वैल्यू 1 से कम है, 1 से कम का क्या मतलब हुआ, 1 से कम का क्या मतलब हुआ, होगी तो 0 से ज़्यादा ही। ये बात आप समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? तो 0 से ज़्यादा तो आंसर आ जाएगा 4x प्लस का। ठीक है, ऐसे यहाँ पर वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो आंसर क्या जाएगा 4x प्लस का। अब क्योंकि ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड मुझे एक जैसे दिखाई दे रही है, तो इस केस में मैं वैल्यू फंक्शन फाइंड करूंगा। 1 पर क्या होगा, 1 पर फिर से जाएगा 4x प्लस। ठीक है, ये एक अलग बात है कि लैम्डा नहीं है ना। मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का? तो फिर क्या होगा, यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4/4 प्लस का 1, 4/4 प्लस का 1 और 4/4 प्लस का 1, सब कुछ क्या हो गया, यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू फंक्शन बराबर हो गई। सो fx इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। लैम्डा की आप कुछ भी वैल्यू रखे रहो, x इक्वल टू 1 पर मेरा ग्राफ, मेरा फंक्शन कंटीन्यूअस है, और यहाँ पर लैम्डा की आप कुछ भी वैल्यू रखते रहो, x इक्वल टू 0 पर मेरा फंक्शन कंटीन्यूअस है। इज दैट थिंग क्लियर और नॉट? ठीक है, वैल्यू ऑफ फंक्शन ना निकालने के कारण ये तो मैंने इसमें दे रखा है, मैंने वैल्यू फाइंड दो मैं लास्ट टाइम दूं 10। मैं फॉरवर्ड ऐसे में लिखूं, इसे जानते हो तुम? यस, जानते हो? यस। ये क्या लिख दिया? अब अगर आपको इसमें कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है,